علم کے موتی، علم کے موتی دلوں میں سجائے، علم کے موتی دلوں میں سجائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں درس نظامی کر رہا ہوں ماشاءاللہ۔ درجہ اولیٰ میں۔ تو سوال یہ ہے کہ جیسے ہم درس نظامی کر رہے ہیں تو بعض اوقات ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہم دوستوں کو بتائیں یا اپنے عزیز و اقربا کو بتائیں تاکہ ہماری عزت بڑھے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں ریاکاری سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ریاکاری سے بچنے کا طریقہ ارشاد فرما دیں، اور میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت اور صحت کی دعا فرما دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین وإیاکم۔ دیکھیں یہ تو ہے بڑا مسئلہ کہ بندہ جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے یا اچھا کام کرتا ہے تو شیطان جو اسے ریاکاری میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے لیے ایک رسالہ ہے، اس کا نام ہے ریاکاری۔ اس رسالے کا مطالعہ کر لینا چاہیے، اور یہ یاد رکھا جائے کہ ریاکاری کی وجہ سے عمل بھی نہیں چھوڑنا، کوئی اچھا کام بھی نہیں چھوڑنا ریاکاری کی وجہ سے۔ علم اضافے کے لیے یا علم وہ کوئی دعا ہمیں ارشاد فرما دیں تاکہ اس ہمارے کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ عطا فرما، مجھے علم نافع عطا فرما۔ بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، قریب آئین میرے کبھی ریا یا رب، قریب آئین میرے کبھی ریا یا آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے جانشین امیر السنت، میرا نام سراج احمد اتاری ہے۔ میں فیضان جامعۃ المدینہ فیضان بغداد درجہ سادسہ میں پڑھتا ہوں۔ آپ سے عرض یہ کرنی تھی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر ہے، اس کی تشریح بیان فرما دیں۔ اور شعر یہ ہے کہ کہتی تھی براق سے اس کی سب کروی، کہتی تھی براق سے اس کی سب کروی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو۔ یا سیدی، اس میں سبق روی سے مراد کیا ہے؟ سبق روی سے تو رفتار
तेज रफ्तारी, और यानी बुराक से तेज रफ्तारी कहती थी कि गर्द को खबर ना हो। और ऐसे कि जब घोड़ा दौड़ता है ना तो धूल उड़ती है ना, तो बुराक भी जो जानवर है, तो यानी बुराक की जो तेज रफ्तारी थी वो कहती थी कि गर्द को भी खबर ना हो, यानी इस तरह चलना है कि गर्द उड़े ही ना। और या सैयदी आजकल वालिदैन अपने बच्चों को जिन्नात का, उनके दिल से जिन्नात का खौफ मिटाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं कि भाई आप फलां जगह चले जाएं, ये जिन्नात वगैरह नहीं होते। तो इसके बारे में, यानी फलां जगह चले जाए वो जिन्नात नहीं होते। जिन्नात वगैरह कुछ नहीं होते, आप फलां जगह चले जाएं। तो कुरान जिन्नात मजीद तो जरा कि दुनिया के चप्पे चप्पे में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ जिन्नात ना हो। तो इस तरह कहना कैसे है? और जो इस तरह कह रहा है कि जिन्नात नहीं है, फिर वो काफिर हो जाएगा? नहीं, वो तो नहीं, वो जो बता ना वो ये कि ऐसी जगह चले जाए जहाँ जिन्नात नहीं है, ऐसी जगह। तो जैसे मैं अगर कहूँगा फलां जगह चले जाए वहाँ कोई इंसान नहीं मिलेगा, जंगल में चले जाए, तो इस पे जिन्नात का इनकार नहीं पाया जा रहा, इस जुमले से जिन्नात का इनकार नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। या सैयदी मोहम्मद दानिश अत्तारी, सदर टाउन, शोबा कफन दफन के ज़िम्मेदार, सदर वन। या सैयदी, पहला सवाल मेरा ये है कि मस्जिद क़िबलातैन, अरब शरीफ की मस्जिद है जिसको बताया जाता है कि मस्जिद क़िबलातैन है, जी हाँ, मदीने शरीफ में। मदीने शरीफ में। तो इस मस्जिद के अंदर यानी कि कहा गया है कि दौरान नमाज क़िबला चेंज हुआ है। तो बिल्कुल। ये क़िबला किस तरीके से चेंज हुआ है, कि नमाज छोड़ के हुआ था या नमाज तोड़ के हुआ था, किस तरीके से हुआ था? एक ये सवाल। 2 रकत जो है वो तो बैतुल मक़दस की तरफ पड़ी गई, इसमें और वही नाजिल हुई, तो दौरान नमाज ही जो है वो खाना काबा की तरफ रुक किया गया। जज़ाकल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा सवाल अर्ज़ ये है कि बाज़ औक़ात देखा जाता है कि स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन अर्ज़ करते हैं, तो क्वेश्चन बाज़ औक़ात नाक़िस तौर पर होता है। तो टीचर होते हैं तो बाज़ औक़ात जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें डांट डपट देते हैं कि ढंग के सवालात किया करो, ये क्या बेतरतीब सवालात कर रहे हो, जिसके बायस स्टूडेंट बसा औक़ात, बाज़ औक़ात और दीगर मौक़े में सवालात नहीं करते हैं। तो एक स्टूडेंट जब टीचर से सवाल करे और वो नाक़िस सवाल हो, तो क्या रिएक्ट होना चाहिए उस टीचर का? उस स्टूडेंट को वो डांट टपट करे या उसकी रहनुमाई फरमाए अल्फाज को तरतीब देकर उस क्वेश्चन को दुरुस्त तरीके पर डिफ़ाइन करके उसका जवाब अर्ज़ करे? देखिए, हमारा जो मज़हब है, हमारा जो दीन है, वो तो हमें यही सिखाता है कि लोगों की इस्लाह की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह करीम सारे दाऊद इस्लाम इसी पर अमल पेरा है कि अगर कोई सवाल को इस तरह का बेचारा नहीं कर पाता या अटक जाता है या आधा सवाल करता है, तो उसी में जो वो अच्छे तरीके से उसको समझा दिया जाता है। बाज़ का घबराहट की वजह से भी जो सामने वाला सवाल पूरा नहीं कर पाता, तो उसमें भी जो वो उसकी मदद की जाती है। अब चूँकि अगर बंदा आधा सवाल करता है या जो भी इस तरह की बेचारा गलतियाँ करता है और सामने वाले से झाड़ देता है ना, तो वो फिर उससे एहसास कमतरी का वो शिकार होता है, और फिर एक वक्त होता है कि वो बिल्कुल जो पीछे बेक हो जाता है वो। तो हमें जो है वो हौसला शिकन का शिकार नहीं करना सामने वाले को, बल्कि उसका हौसला बढ़ाना है। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन व इय्याकुम। और आज अगर कोई ऐसा टीचर है कि जो इतना बड़ा जो है ना, वो यूं समझे कि इतना माहिर है, सब कुछ है, अब उसे लंबी उम्र मिली, बड़ा हो गया, तो यही टीचर जब बूढ़ा होता है ना, तो इसकी कैफियत फिर वही हो जाती है। दुनियावी तालीम में तो है कि इस तरह का हो जाता है मामला, अलबत्ता दीनी तालीम में ये नहीं होता। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हुजूर, मेरा आपके बारगाह में सवाल ये अर्ज़ है कि वो नमाज के जिसमें सिर्री क़िराअत करना वाजिब है, तो उनमें जहरी अगर क़िराअत कर ली इमाम साहब ने, तो कितनी मिक़दार तिलावत करने पर जो है सजदा ऐसा वाजिब होगा? या जिन नमाज़ों में जहरी क़िराअत करना वाजिब है, जैसे मग़रिब या इशा या फजर, तो उनमें कितनी मिक़दार सिर्री क़िराअत करने पर जो है वो सजदा सा वाजिब होगा?
ऐसी आयतें करें, एक तो ये कि आप उसको यूं समझे एक आयत, वरना ये कि 6 हरूफ पर मुश्तमिल कोई आयत होगी ना, वो अगर उसने किसी ने सिर्री नमाज में आवाज के साथ अगर पढ़ी तब भी तर्क वाजिब हुआ, और अगर इतनी मिकदार में अगर आयत करीमा पढ़ी, इसी तरह अगर वो जहरी नमाज में सिर्री पढ़ ली तब भी सजदा सहव वाजिब होगा। अगर ये भूले से पढ़ा तो, जानबूझ के पढ़ा फिर तो वाजिब याद होगी, दोहरानी पड़ेगी नमाज। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन व इय्याकुम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसे या सैयदी सवाल ये है कि कुछ ना समझ तालिबे इल्म या कुछ बच्चे होते हैं, जमात शुरू हो जाती है तो बीच में खड़े हो जाते हैं, तो कुछ जब बड़े आते हैं उनको पीछे कर देते हैं, या कुछ वालिदैन जो अपने बच्चों को अपने साथ नमाज में खड़ा करना पसंद करते हैं, तो वो ना समझ होते हैं, छोटे होते हैं, तो कुछ आके उनको पीछे कर देते हैं, तो क्या उनका ऐसा करना दुरुस्त है? बराए करम रहनुमाई फरमा कर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएं। हाँ, जो ना समझ बच्चा है, जो नमाज को समझता ही नहीं है, तो उससे तो ये कि अच्छे तरीके से पीछे ही कर देना चाहिए। और या सैयदी मक्के मदीना की बात हाजिरी की अल्लाह करीम बाद आवाज़ नसीब। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसन। आमीन व इय्याकुम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नबी हैं या रसूल? दुनिया में कितने रसूल तशरीफ़ लाए? और लिखने पढ़ने की नेमत सबसे पहले अल्लाह ताला ने कौन से नबी को अता फरमाई? तो ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो वो नबी और रसूल दोनों थे, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में चौथे नबी और पहले रसूल हैं जो कुफ्फार की तरफ भेजे गए। और ये कि हर नबी पढ़ना लिखना जानते थे, क्योंकि अगर कोई पढ़ना नहीं जानता या लिखना नहीं जानता तो ये कहलाएगा जहल, तो नबी जो है ना वो इस चीज़ से पाक है। दुनिया में नबी और रसूल कितने तशरीफ़ लाए थे? रसूलों की तादाद के बारे में आते हैं कि 313 थे, और अंबिया कराम के बारे में आते हैं कि कमो बेश 1,24,000। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आपकी बारगाह में सवाल अर्ज़ ये है कि जैसा कि ना कोई यानी कि नौकर कहीं पे काम पे लगता है तो सेठ गालियाँ देता है, किसी किसी से ऐसा होता है कि गालियाँ बर्दाश्त नहीं होती और सेठ से लड़ के आ जाते हैं, तो कोई कोई यानी कि वो निकलते हैं काम से तो अपने दोस्त को बोलते हैं कि भाई सेठ ने गालियाँ दी इसलिए मैंने छोड़ दिया ये वो, तो वो दोस्त ऐसा कोई बोल दे कि सेठ है पैसे देता है, काम करते हैं, सेठ है पैसे देता है, गालियाँ तो सुननी पड़ेंगी, हर चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तो उसके हवाले से रहनुमाई फरमा दे। अब ये तो है कि बात सेठ जो है ना वो बेचारे गालियाँ देते हैं। अब ज़ाहिर है कि वो और कोई ज़रिया भी नहीं है, ज़रिया मुआश भी नहीं है नौकरी का, तो वहाँ बंदा बर्दाश्त कर ले, उसके लिए दुआ करे हिदायत की, और कोशिश करे कि उसको गुस्सा ना आए, वो जो बोले वो काम फौरी कर दे जो उसकी दस्तरस में हो, यानी जो उसके लिए मुमकिन हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम मोहम्मद आमिर अतारी है, लियारी आगरा से। आपसे सवाल अर्ज़ है कि मरहूमिन की रूह हर जुमेरात को घर पे तशरीफ़ लाती है, मरहूमिन की रूह ख्वाब के अंदर नहीं आती, उसकी अलामत राज़ी है नाराज़ है? ख्वाब के अंदर नहीं आते, नहीं ये तो ज़रूरी नहीं है कि राज़ी नाराज़ी के इससे ताल्लुक़ नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन व इय्याकुम। नबी और रसूल में से अफजल कौन है? रसूल अफजल है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। किताबों का मुताला करते हैं या मुबल्लिगीन का बयान सुनते हैं तो एक जज्बा सा पैदा हो जाता है कि आज से मुस्तहब्बात भी नहीं छोड़ने, तो ये फिर 1-2 दिन इस्तकामत रहती है, उसके बाद फिर एक वो पहले से कफ़ियत बन जाती है। तो ये शायद फरमा दे कि इस तरह फिर इस्तकामत किस तरह बरकरार रखी जाए, और हजरत ये भी फरमा दे कि इस्तकामत की तारीफ़ क्या है। जज़ाक। इसका तो यही है कि एक तो एक अल्लाह ताला से बंदा दुआ करता रहे, और दूसरा है कि जैसे वो ढीला होने लगे तो दोबारा जो वो
ان مستحبات یا اسی کتاب کا مطالعہ کر لے. جب بار بار مطالعہ کرتا رہے گا, بار بار فضائل اس کے پیش نظر ہوں گے نا, تو پھر انشاءاللہ الکریم استقامت مل ہی جائے گی. جزاک اللہ خیر. آمین وإیاکم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جگر گوشہ بطول امام علی مقام, امام عرش مقام, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت شریف 5 شعبان 4 ہجری مدینہ منورہ زاد اللہ شرفوں و تعظیمہ میں ہوئی. آپ کا نام خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حسین اور شبیر رکھا. آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کا لقب سبت رسول اللہ اور ریحانۃ الرسول ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں تکبیر کہی, اور اپنا لعاب اقدس یعنی تھوک مبارک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حسن حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کمال محبت تھی. حدیث پاک میں ارشاد ہوا, جس نے ان دونوں یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے محبت کی, اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے ان سے عداوت کی یعنی دشمنی کی, اس نے مجھ سے عداوت کی. خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شہر علم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دروازہ شہر علم امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم دین کا بیش بہا خزانہ پایا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی مجلس کی تعریف کرتے ہوئے ایک قریشی سے فرمایا, مسجد نبوی میں چلے جاؤ, وہاں ایک حلقے میں لوگ ہمتن گوش ہو کر یوں بیٹھے ہوں گے گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں. ہمتن گوش یعنی کان لگا کر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سن رہے ہیں, تو گویا کہ ان کے اس طرح بیٹھے ہیں کہ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے ہیں. جان لینا کہ یہی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس سے نیز اس حلقے میں مذاق مسخری نام کی کوئی چیز نہ ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ یا سیدی کون سے اعمال اختیار کیے جائیں کہ مال کی محبت جو ہے وہ دل سے ختم ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں آ جائے. قناعت کا مطالعہ کیا جائے. قناعت کی وضاحت تھوڑی کر دی. یعنی کہ جتنا مال ہے نا اسی پر جو ہے وہ بندہ رہے, اور مال نہ ہو تو وہ یعنی کیا کہتے ہیں, توکل اور قناعت دونوں. دعاؤں کی درخواست. اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. میرا سوال سے یہ ہے, ہم زمین دیتے ہیں ٹھیکے پہ جی, تو ہم فکس ریٹ کر لیتے ہیں ان سے, مونجی 20 من مونجی لیتے ہیں, 20 من کنک لیتے ہیں. اچھا, جو مثال ادھر آپ نے یہ زمین دی, اب آپ نے اس کا کرایہ جو نا 20 من منجی لینی ہے. ہاں جی. ہاں یہ تو جائز ہے. 20 من گندم لینی ہے. ہاں جائز ہے. ایک سال ٹھیک ہے, جائز ہے, کوئی حرج نہیں. اس میں یہ مزید سوال یہ بنے گا شاید کہ یہ زمین خالی ہو. جی جی زمین خالی جو مقادبے دیتے ہیں, اچھا مقادبے تو پیسے دیتے ہیں نا, مطلب 50,000 لاکھ روپے میں ہوتا ہے,
वो नहीं करते आप। अब पैसों के बजाय इन्होंने ये ले लिया। पैसों के बजाय अब मिसाल के तौर पर सवाल ही शायद इनकी जहन में यूँ आया होगा कि अब वो उस पर फसल ही कम हुई, मिसाल है बारिश की वजह से फसल ही 10 मन हुई जी जी और इन्होंने 20 मन का उससे कह दिया है, अगरचे इन्होंने तो 20 मन फिक्स कर लिया है, लेकिन वो तो देगा फसल पर, तो ये तनाज़े की सूरत नहीं असल बनेगी? में नहीं कि 20 मन ही तय करना पड़ेगा, 5 मन तय करना पड़ेगा, 10 मन ही, यानी तय करना जरूरी है यहाँ। अब वो चाहे कि वो इस जमीन से दे या कहीं से भी उठा के दे, यानी उसने देखा 20 रुपये हो गए, 20 मन 20,000, 20 रुपये यूँ समझे। अब जब रुपया नहीं था तो इसी तरह होता था ना फसल का। देखिए एक ने आटा दे दिया, दूसरे ने चावल दे दिए, तो एक ने चावल दिए तो किसी ने दाल दी, किसी ने दाल तो किसी ने कपड़ा, पहले यही था। ठीक है जी, हाँ ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। मैं गुलाम अब्बास अतारी नारवाज से हाजिर हुआ हूँ एक माह का मदनी काफिले में। माशाअल्लाह। मेरा ये सवाल है मेरे जाशी ने मेरे अलैहिस्सलाम से जी रे वो शाह की नमाज पढ़ते आदमी तो पहली साफ में बैठे होते हैं तो गैर मुक्ता सुनता छोड़ देती ने, छोड़नियाँ कैसियाँ? सुन्नत गैर मुअक्कदा। हाँ जी। अच्छा, नहीं पढ़नी चाहिए, अगर नहीं पढ़ता तो गुनाहगार नहीं है। सही। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंडी बुचियाना, तहसील जड़ांवाला, ज़िला फैसलाबाद, शोबा तालीम की तरफ से शहज़ादा अहले सुन्नत की खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा सवाल ये है कि बाजमात नमाज में तीसरी और चौथी रकत में खामोश रहना ज़रूरी है। अगर खामोश रहने की वजह से वसवसे आते हों तो क्या बंदा सूरत फातिहा आस्ता आवाज़ में या दिल में पढ़ सकता है ताकि वसवसों से बचा जाए? बाजमात नमाज में तीसरी 4 रकतें हों जी या 2 रकतें हों, किसी भी रकत में मुक्तदी जो है वो सना के बजाय कुछ भी नहीं पड़ेगा। जी जज़ाकल्लाह। वसवसा आए तो उसके लिए तरीके कि नाफ के नीचे जो ना ये दबाए, उसको जोर लगाएगा तो इंशाअल्लाह करीम वसवसा नहीं आएगा। शोबे ओशर मुल्तान शरीफ से हाज़िर हुआ जी। आपकी बारगाह में सवाल है जी कि जैसे हम अपनी ज़कात थोड़ी थोड़ी करके सारा साल में देते रहते हैं एडवांस, जब साल ख़त्म होगा तो हिसाब करके उसको हम अगर बढ़ती हुई तो अगले साल में एडजस्ट कर लेंगे, अगर कम होती हुई तो और देके क्लियर कर देंगे। तो क्या इसी तरह हम अपनी फसलों का उशर एडवांस में दे सकते हैं? जैसे गंदम है, मिसाल के तौर पर किसी को देनी है गंदम, मेरे पास गंदम पड़ी हुई है तो मैं कहूँ जब मेरी गंदम होगी इसका उशर मैं अभी उशर अदा कर देता हूँ, जब मेरी गंदम होगी पैदावार उसमें से ये उशर मैं काट लूँगा अपना। तो इस तरीके से क्या उशर हम एडवांस में अदा कर सकते हैं? उशर के अहकाम एक रिसाला है, क्या उशर पेशगी तौर पे अदा किया जा सकता है? तो जवाब इसकी चंद सूरतें हैं। जब खेती तैयार हो जाए तो इसका उशर पेशगी देना जायज़ है, यानी खेती तैयार हो गई अब काटा नहीं है तो इससे पहले हम दे सकते हैं उशर। खेती बोने और जाहिर होने के बाद अदा किया तो भी जायज़ है। अगर बोने के बाद और जाहिर होने से पहले अदा किया तो अजहर यानी ज़्यादा जाहिर यह है कि पेशगी अदा करना जायज़ नहीं। यानी यह कि बीज बो दिए, अब यह है कि ये कुछ निकला ही नहीं अभी तक, तो इससे पहले अगर किसी ने अदा कर दिया तो ये जायज़ नहीं, सदका नफल हो जाएगा, उश्र दोबारा देना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा एक ये जो सूरतें ज़िक्र की गई है ना, तो अफजल यही है कि पैदावार हासिल होने के बाद ही उश्र अदा किया जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवक्कुल के बारे में भी इरशाद फरमा दें। तवक्कुल के हवाले से तवक्कुल का मुताला करें, और ये तो है कि तवक्कुल तर्के असबाब का नाम नहीं है, यानी ये नहीं कि बंदा जो है ना वो ये क्या कहते हैं अपने
وہ نا کہ حدیث پاک میں مثال دی گئی نا کہ اونٹ کو جو ہے نا وہ رسی سے باندھو اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرو. پھر یہ نہیں کہ اونٹ کو چھوڑ دو, اسے رسی وغیرہ چھوڑ دو اور بندہ بولے کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں. تو ظاہر ہے کہ بندہ ذریعہ معاش بھی اختیار کرے, کمائے بھی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے. مکتبۃ المدینہ کی کتابیں اس کا نام ہی ہے توکل, اس کتاب کا مطالعہ کر لیجئے. باقی یہ ہے کہ احیاء العلوم میں بھی اس حوالے سے لکھا ہوا ہے. اللہ ہمیں توکل نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد امجد اتاری ملتان شریف سے حاضر ہوں. میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ کچھ لوگ ٹھنڈے علاقوں سے گرم علاقوں کی طرف آتے ہیں تو اکثر وہ کہتے ہیں جنت سے جہنم کی طرف جا رہا ہوں, تو کیا ایسا کہنا جائز ہے؟ ویسے یہ محاورتاً جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ جنت سے جہنم کی طرف جا رہا ہوں, ورنہ یہ جس کو جنت سمجھ رہا ہے تو اس میں بھی تو وہ آزمائش ہوتی ہے ٹھنڈے پانی میں اور پریشان ہوتا ہے وہ. تو محاورہ ہے کہ قیامت خیز گرمی آئی ہے, زلزلہ آ گیا تو بس قیامت آ گئی, کوئی مصیبت آ گئی تو مجھ پہ تو قیامت آ گئی. تو یہ محاورہ ہے یہ, تو اس میں یوں حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم کے موتی, علم کے موتی دلوں میں سجائے, علم کے موتی دلوں میں سجائے.